Hi everyone, welcome to The Hiring Edge, the podcast that unlocks the secrets to building an exceptional workforce. I'm your host Steven and I'm thrilled to have you join us on this exciting journey that we are going to embark on. In a world where talent acquisition and team building have become absolutely vital for success, we are here to provide you with the insights, strategies and stories that will give you the hiring edge. Each week, we'll dive deep into the ever-evolving landscape that is recruitment and uncover for you the latest trends and industry innovations. In fact, in today's pilot episode, we have a true industry trailblazer joining us. Our guest is none other than Mr. Mayank Pratap Singh, the brilliant co-founder of a cutting-edge hiring technology company based out of Indore, one of the cleanest cities in India, and this company is called Super Sourcing. With their expertise in remote work and productivity, they have revolutionized the way that businesses find and cultivate top talent. Let's talk to Mayank. Hi Mayank, how are you? All good, thank you. Thanks for hosting. Perfect, great. So, in fact, let's have some insights into what started the idea of a hiring tech company for you initially. Why did you get into this sphere? I think no matter whether it's a tech company, non-tech company, all built by a human, and having the right people is a pleasure, also in a pain. So if you don't have the right people, they cannot build a good company, right? And hiring looks pretty easy from outside, but when you go deeper, तो बहुत सारी चीज़ें होती है. कल्चरल फिटमेंट देखना, मोटिवेशन देखना, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है. This person is gonna help company at certain level, or he can become a leader or manager. तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थे जब हम लोग कंपनी बिल्ड कर रहे थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि दीज ऑल थिंग्स आर देयर. बट येस, सुपर सोर्सिंग एज अ कोर, वी पर्सनली बिलीव दैट remote is going to be the future, and people can run a successful remote company, and that's what we are trying to build. You just talked about remote, the idea that remote is one of the themes for you while building Super Sourcing. Why remote specifically? तो मेरी पहली जॉब थी, तो मैं एक MNC में वर्क करता था बेंगलोर में, और BTM से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मुझे रोज़ जाना पड़ता था. तो ऑफिस में अराउंड 8 o'clock क्या मैं स्टार्ट करता था, बस में आता था. फिर सिल्क बोर्ड बीच में एक वहाँ पे सिग्नल है जहाँ पे काफ़ी बड़ा जाम लगता है. How did you travel in Bangalore? सो मेजरली ऑफिस बस आता था, उसी के थ्रू हम लोग जाते थे. जाने में समटाइम इट्स 1 hour, समटाइम्स 1.5 hour, सेम लौट के आने टाइम में सेम होता था. मुझे लगा एक दिन थोड़ा ठीक है, चलो समझ में आता है, 2 दिन भी लगता है, पर अपनी लाइफ का 30% टाइम यू आर वेस्टिंग इन ट्रैफिक जाम. 30% थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, मुझे लगता है ज़्यादा है. I've lived in Bangalore. I know the hardships that come with traveling. So people don't even come. So when I go on a weekend, किसी को बोलते हैं कि यार चलो मिल लेते हैं, तो लोग बोलते हैं यार वीकेंड पे मिलेंगे, यार वीकडेज पे मत बुलाओ. और छोटी छोटी जगह जाने के लिए भी ना, एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड 45 minutes. यहाँ इंदौर में तो आपको ऑफिस आना 15 मिनट में कहीं से भी आ सकते हैं, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू बेंगलोर, मुंबई, आई थिंक थिंग्स आर वेरी फार. एंड एक दिन 2 दिन कर सकते हो, बट इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग. ऑल्सो पैसे लगते हैं, टाइम लगता है. यू कैन नॉट स्पेंड टाइम विद द फैमिली. यू कैन नॉट द मॉर्निंग टाइम विच यू कैन गिव इट टू द योगा, इवनिंग टाइम विच यू कैन गिव इट टू द योर फैमिली, वो कब तक वीकेंड के लिए वेट करेंगे. सो दैट्स वाई वी टुक अ कॉन्शियस कॉल एंड वी थॉट लाइक let's build the company which can serve the purpose and solve it from core, and that is what we are. Makes sense. That's a great story. I can actually empathize with you over the fact that Bangalore would have actually driven you into, building a company around remote, because Bangalore is exactly the kind of place where remote work would work. Mayank, actually studies बताते हैं कि जो productivity है with regards to remote work, तो over a longer duration productivity begins to fall down. Initially, of course, people might show much more productivity or efficiency, but over time people complain, leaders complain that productivity for employees has gone down. तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? See, प्रोडक्टिविटी का सर्वे अगर हम लोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा रहता है. येस, व्हेन पीपल सिट टुगेदर द कॉन्वर्सेशन कैन हैपन एंड यू कैन डिस्कस ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस. तो उससे पीयर लर्निंग से एक एक्स्ट्रा एज रहता है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा द वे जनरेशन इज मूविंग, द वे
traffic is growing, the way technology is empowering, I think we should look for a different way of being productive and new way of doing things better. Because let's say the city like Indore, maybe you could not find the right sort of talents जिन्होंने उस स्केल पे काम किया हुआ हो. सो आप कितने डेमोग्राफी में अपने आप को कंस्ट्रेन कर सकते हो. सो इफ़ यू लुक फॉर प्रोडक्टिविटी, वी हैव कपल ऑफ पीपल हु बीन वर्किंग विद अस इन city like Coimbatore, from Mumbai, some Ahmedabad, small places, and they've been extremely very productive. I must say like they've been one of the best hire for us. So What has been your secret? There's a lot of things. So rather than we looking for more of a talent, we look for what is the purpose, why this person is going to join, and asking a lot of things in the background. Who all are there in your family, why you want to work, and why with us, okay, looking when you have multiple options. तो जब आप डीपर जाने की कोशिश करते हो तो आप एक वो डॉट कनेक्ट कर पाते हो. आपको लगता है कि हाँ यार ये इनका विज़न है और ये करना चाहते हैं. सो रिसेंटली आई वाज इंटरव्यूइंग वन गर्ल एंड सी सेड, मैंने कहा क्यों आपको जॉब चाहिए, एंड सी सेड कि वी बोथ आर ट्विंस एंड पापा बेटे को अपना बिजनेस संभालने के लिए देते हैं पर मुझे नहीं देते हैं. सो मैं भी सेम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, उससे अच्छे मार्क्स आए हैं, why not I should give a chance. That's a big impetus, right? So I told her कि I'll give you a responsibility and it's okay to fail, and I'll also help you how to take right decisions. And obviously you guys are much better than me, because जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था I was not getting that much paid. Also, I was not knowing those all things which you guys know right now. Right. So yes, almost I think the generation come up in such a level कि like they are asking those thoughtful questions, and they have some ambition. And as a leader or as a senior, it's our responsibility to support these people. स्पेसिफिकली विद रिगार्ड वर्किंग कंडीशंस, जो कि कुछ बहुत छोटे छोटे वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे कि लोकेशन क्या है, या फिर लेट्स से जितने भी एफिशिएंट टूल्स हैं जो कि यूटिलाइज करें, आप ये कैसे सॉल्व कर पाते हैं आपके रिमोट एम्प्लॉयज़ के? सो रिमोट में प्रोडक्टिविटी लाना एक नई लर्निंग है, जिसके लिए फर्स्ट हायरिंग द राइट पीपल. सो वहाँ से ये स्टार्ट होता है. एंड व्हेन यू आर हायरिंग द पीपल, यू डोंट लुक फॉर कि CV में अच्छा है, बंदा अच्छा है, उसको हायर कर लेते हैं. लुक वेदर ही इज़ अलाइंग विथ योर कंपनी गोल और नॉट, वेदर ही हैज़ डन सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट और नॉट. अगर फिनटेक का आपका प्रोडक्ट है तो वैसे लोगों को हायर करो जिन्होंने फिनटेक में काम किया हुआ हो, बिकॉज समबडी हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट सेम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. उनका लर्निंग कर्व कम होगा, आपको टाइम कम लगेगा उनको प्रोडक्टिव बनाने में. Somebody who already been working with that sort of environment like remote or hybrid, probably these guys already know, तो आपको उनको nitty-gritty सिखाने की ज़रूरत नहीं है. Then maybe you can create a culture document like how day-to-day operation works with your company, Slack कैसे काम करता है, you can create a product roadmap document, you can create a Loom video around it. तो people will already know कि like मुझे day-to-day में काम होना कहाँ पे है. जहाँ आप ये फिटमेंट चेक नहीं करते हो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आता है. Then again, timely basis, if you judge the right person, they are into the systems, and then they are not being productive enough, which means like something wrong you did, either in a motivation level or checking the compatibility level, or तो ये वहाँ पे देखना पड़ता है कि क्यों नहीं है, whether they are aligning with the problem which you are solving. So if you छोटा सा ही आपको बताता हूँ. सो इनिशियली वी वर राइटिंग अ JD एंड टेलिंग कि हे वी हैव अ ब्यूटीफुल ऑफिस एंड लॉट मैनी पीपल वर जॉइनिंग, बट दे वर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी बिकॉज दे वर कमिंग लुकिंग अ ब्यूटीफुल ऑफिस. जब अंदर आके देखते थे अच्छा इतने गड्ढे खुले हुए, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, अच्छा ऑफर लेटर में ग्रामर मिस्टेक्स भी है. बट व्हेन यू tell people कि hey these are the problems which company wanted to solve, and that's where we wanted to reach, and anybody who is joining and they wanted to solve that problem, they are passionate to solve that problem, then you will find the right talent. Is this just an ideal situation, or are you able to drive this actually in your No, place? we are able to drive. If you look for all our JDs, they talk about the problem, they don't talk about कि हमें award क्या मिला है, हमारी कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया है. सो गुड थिंग इज असाइड ऑब्वियसली, बिकॉज एनीबडी हु जॉइन द कंपनी स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम habitual and people look for other side also.
सो लॉन्ग टर्म होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट कि 7 days में ही कुछ अचीव हो जाएगा. पीपल कॉन्स्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, अकेले काम रहे हैं एंड अपनी टीम को भी एम्पावर कर रहे हैं. बिकॉज इफ़ यू हायर 5 people in a team, then productivity is all about everybody multiplying energy, right? पर कोई एक बंदा ऐसा आता है जो दूसरों की एनर्जी ड्रेन करने लगे. बिकॉज when न्यू गाइज ज्वाइन तो दूसरों को भी लगता है कि अच्छा मेरी जॉब पे रिस्क तो नहीं है. फिर किसी को ये भी लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा प्रमोशन इसको मिल जाएगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. वो जैसे आई मस्ट से लाइक पानी में जब आप पत्थर फेंकते हो ना तो वो वेव्स आते हैं ना, तो वो होता है. एनी न्यू पर्सन ज्वाइन, ही एड सम वैल्यू, बट लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. एंड इफ यू मैनेज दैट really well and that person become an addition to the energy, then company will thrive. So is there a specific SOP that you use? You use the word energy, and I really resonated with that. The idea being key, is there a specific SOP that you guys follow in order that synergies in departments might match? So in a company can have a very different cultures. Initially when we started we were not knowing. हमको लगता था कि यार अच्छा बंदा बात करने में लग रहा है and let's hire a people from a very diverse culture. But over the period of time we realize that the kind of company you are trying to build, the kind of vision you have with the company, the kind of location you are, and सब कुछ डिफरेंट होता है. किसी एक का SOP दूसरे में फिट नहीं होता है. The company, if I am building in Indore, the culture is very different than company probably I'm going to build in Bangalore or a Mumbai में people talk honestly. सभी लोग अपने लाइफ में काफ़ी बिजी रहते हैं, लोगों के पास फालतू का टाइम नहीं रहता है. Indore is a little dishonest, is it? Not in a dishonest, but I think it's here people are it more of a emotional things drive. Like people look more of a culture, family support. So in Indore, like we have a lot of people who were with us since 8 years, 9 years. So this was more of a family culture. Okay. But when you go with the metro cities, it's more of a transitional culture. Like people look for quality work. They ask some difficult questions. They look for what's going to be my KRA, which nobody asks in Indore, right? So you have to get prepared when you are doing this. When you hire in some cities like few people we hired in Coimbatore, they said, hey Mayank, why we are building this and how this is gonna impact the market which we are gonna do. And people ask those thoughtful questions when you basically either the talent has that level of intellect, they've been working with those industry, or they are joining to solve some sort of problems, not taking as a job. Right. With regards to conventional workspaces, आपको लगता है कि कोई चेंज आपको नज़र आया है पिछले 10 साल में या आगे कुछ 10 साल में नज़र आएगा? कन्वेंशनल तरीका जो काम करने का है ये तो नहीं करने वाला है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में भी देखेंगे, फॉरगेट अबाउट द वर्क एंड वर्क प्लेस. पहले लोग लाइफ लॉन्ग तक कमिटेड रहते थे. मेरे पापा ने एक ही जॉब किया, वहीं पे रहा. दादाजी ने एक ही जॉब किया, एक ही वहाँ पे रहते. सो बट अभी हर साल में, इनफैक्ट इफ़ यू गो मेट्रोस तो लोग हर 6 month में स्विच मारते हैं, राइट? सो पीपल नीड दैट फ्रीडम. it's a more freedom, it's a more quality of work. People want travel and lot many things are there. If you look relationship also, divorce cases improve because पहले ऐसा होता था कि ठीक है जो भी है female are the one who keep listening all sort of things. In fact गांव में बहुत सारा होता था and they have to manage anyhow whether they like or not. And but now if you look for people they are looking independent. They need they don't want consistency. They want basically decision making. They also wanted to come equality and they also need that empowerment, and I think that's the right time. And so that's how workplace also need to make a change, right? You cannot give a traditional setup for everybody ki hey itne baje aa jao, ye kar lo, wo kar lo. If you do this, probably you cannot get the right sort of intellect which they can drive, kyunki ye especially in IT, it's not about the labor work. I just wanted to interrupt you for a second. Does this also mean that you're saying that leaders should stop expecting that employees stay for longer durations? For us, like almost like for me, running a company, been
10 years, 11 years duration, but we never ask anybody to stay longer. ज़्यादा टाइम देने से मतलब ज़्यादा आउटकम का कभी नहीं होता है. अगर आपका प्रोसेसेस सही हैं और आपने वेल डिफाइन किया हुआ है कि क्या स्कोप उस टाइम पे होना चाहिए, प्रायोरिटाइज प्रॉपर किया हुआ है, तो ज़्यादा टाइम देके ज़्यादा आउटकम कभी नहीं निकलेगा. Makes sense. Right. And I think it will be working for us. Maybe some nature of the work required more number of hours, but burning late night oil don't take you longer. Health issues होते हैं, energy dip होती है, people take drink and lot many things. तो वो consistency नहीं आ पाती है. How do you drive work-life balance in your company? Morning we go yoga and evening I think being in a smaller city this is an advantage. You can enjoy all sort of things in a same day. Right. You don't need to depend on weekdays, Yeah. weekend. And so I think one is focusing on health and surrounding yourself with the positive people and also having time for good food, spending time with some nature and all help us. Works. Yes. Right. You deal with recruiters on a day-to-day basis. What have come across as the most the biggest challenges, let's say, that impact recruiters or companies? ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट मुझे लगता है ना, मतलब समटाइम आई फील पिटी ऑल्सो कि बेचारों को बहुत मेहनत करना पड़ता है. इफ़ यू लुक फॉर उनका लिंक्डइन हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, सो मैनी पीपल आर यूजिंग इट, but basic things they don't have, like current package, expected package, notice period, right? That's how the journey of any recruiter started. Yes. तो उनका लाइफ का 30% टाइम तो ये 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछने में निकल जाता है कि भाई फ़ोन लगाया कि करंट पैकेज कितना है, एक्सपेक्टेड पैकेज कितना है, नोटिस पीरियड कितना है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कब से ज्वाइन कर सकते हो. और फिर उन्होंने पूल बनाया, सेम जेडी लेके मल्टीपल वेबसाइट पर डाला, पूल बनाया. पूल बनाने के बाद में देन अगेन नेक्स्ट ट्रैप स्टार्ट होता है, टेकिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम बोथ वेबसाइट. अगर सीनियर जितने लोगों को आप ढूंढोगे, जितना सीनियर बंदा होगा उतना वो बिजी होगा, राइट? तो उसका टाइम लेना कि कब इंटरव्यू आपका करा सकते हैं, फिर अपनी टीम में किससे उसका इंटरव्यू करा सकते हैं, तो उनका टाइम लेना, उस अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट में भी बहुत इनका एनर्जी जाता है. फिर अगले लेवल पे कि वो जो टैलेंट जो प्राइस मांग रहा होगा और जो कंपनी प्राइस देने वाली होगी उसके बीच में बड़ा गैप होगा, तो उनका टाइम सबको कन्विंस करने में ही निकल जाता है. How have you changed this? सो वी काइंड ऑफ बिल्ड अ प्लेटफॉर्म कि चलो यार, ये 30% जो टाइम इसमें लगता है ये तो ऑटोमेट कर सकते हैं ना, क्योंकि सिंपल एक ईमेल भेज के करंट पैकेज, एक्सपेक्टेड पैकेज, नोटिस पीरियड भर देंगे ना, तो इतना एनर्जी इसमें देने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू के टाइम में इफ़ द मोर डेटा इज अपफ्रंट अवेलेबल, लाइक आस्किंग सम क्वेश्चंस विच कैन बी रिकॉर्डेड, देन इट विल सेव टाइम कि इससे बात करनी है या नहीं करनी है. एंड देयर इज़ अ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑल्सो टू लुक द प्रोफाइल एंड यू गेट टू नो कि ये हमारे काम का है या नहीं है. लेट्स से any company who are dealing in the fintech, why they should hire people who are coming from a very different background and all, right? So maybe domain mapping, maybe people who has worked with a similar sort of stage projects, maybe if somebody building OTT, if people has worked with the OTT, then it makes more sense. And people who has worked with the, let's say somebody who has worked with the idea stage to series A stage company, then if you hire a people who done a similar sort of work, and then you know कि कल्चरल फिटमेंट भी अच्छा होगा क्योंकि स्टार्टअप में काम करने का एक्सपीरियंस है. इफ़ यू आर हायरिंग फॉर सर्विसेज कंपनी, देन पीपल हु हैज़ वर्क विद द सर्विसेज कंपनी, बिकॉज दे नो द प्रोसेसेस, दे नो कि वो आईडी कार्ड का टाइम कितना लगता है, कैसे आना है, कि ये करना है, तो वो एक इन्वायरमेंट सिखाना नहीं पड़ता आपको. एंड आई थिंक दोज ऑल हायरिंग, बिकॉज हायरिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट अ हायरिंग ऑल्सो लिंक विद द प्रोडक्टिविटी. अगर एक गलत हायरिंग आपका हो जाता है तो सब लोग आप ही के ऊपर ब्लेम करने वाले हैं एज अ रिक्रूटर कि यार आपने गलत हायरिंग कर दिया. अगर जूनियर लेवल का इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर है तो वो बंदा ही छोड़ के जाएगा, तब आपका पूरा हायरिंग का जो टाइम था वो बर्बाद होगा. ग्लासडोर के रिव्यू से रेपुटेशन ख़राब होगा तो हो गई सही, राइट? बट इफ़ यू डू अ रॉन्ग हायरिंग एट मैनेजर लेवल और अ लीडरशिप लेवल, तो कल्चर भी फकअप होगा, चांसेस है 4-5 लोग और भी जाएंगे, पैसे जो लगेंगे वो भी जाएंगे, और कंपनी का जो रेपुटेशन ख़राब होगा, हो सकता है कुछ कस्टमर भी पोच हो जाएं, तो काफ़ी सारा कॉस्ट जाता है. एंड
if one wrong hiring happen at senior level, probably company भी बंद हो सकती है. So companies who are just starting out, let's say, yeah, even at perhaps the point of where they are trying to raise first rounds of funding, do you think advertising the fact कि हम लोग completely remote काम करते हैं, companies like Zapier for that matter, Airbnb, these are companies that are still working completely remotely, right? Does it help you get investors if you sell the fact that we are a remote company? देखो, जस्ट सेइंग कि वी आर अ रिमोट कंपनी लोगों को किक नहीं आता है. पीपल लुक फॉर अ बिजनेस मॉडल एंड ऑल. पीपल लुक फॉर व्हाट काइंड ऑफ टीम इज देयर. डू यू हैव एनी लीडरशिप लेवल पर्सन हु ऑलरेडी know how to run a remote company? Do they have a culture? So when we were building a company, we kind of onboarded couple of investors who built this kind of company earlier. तो हम उनसे बात कर पाते थे, उनको बता पाते थे कि ये हमारा ये फाइंडिंग है. In fact we kind of onboarded one investor and he said कि यार आपको इस इंडस्ट्री का इतना नॉलेज कैसे आया? And हमने कहा नहीं यार आपसे पैसे तो नहीं चाहिए. बोले नहीं हमें तो देने ही है आपको, राइट? तो बोलते हैं जो प्रॉब्लम को आप लोग बता रहे हो ना, लोग उस सरफेस तक टच ही नहीं कर पाए हैं. बिकॉज एंड इफ यू लुक फॉर अ पीपल हु आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट ना, बेसिकली दे आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर कस्टमर बट इट्स नॉट देयर कोर प्रॉब्लम. वी वर एबल टू बिल्ड अ प्रोडक्ट बिकॉज हमारा खुद का एक कोर प्रॉब्लम था. तो हमको समझ में आ रहा था कि अच्छा ये कंपिटेंसी का प्रॉब्लम है, ये कल्चरल का प्रॉब्लम है कि इफ़ यू हायर द टैलेंटेड पीपल दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन अ कंपनी बिकॉज यू डोंट हैव अ कल्चरल डॉक्यूमेंट. तो ये बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें हैं जो पता नहीं होता है. और हर सिटी के अलग अलग न्यूएंसेस हैं. इफ़ यू हायर पीपल इन दिल्ली तो लोग बहुत चिल माइंडेड होते हैं, बहुत बात करते हैं. व्हेन यू हायर अ पीपल इन कोयम्बटूर और बेंगलोर में तो मूवी एक लाइन में हो सकता ख़त्म हो जाए स्टोरी. व्हेन यू हायर पीपल इन बेसिकली मुंबई एंड ऑल, तो पीपल डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. दे वांट कि यार ठीक है डेटा की बात करते हैं, काम खत्म करते हैं, राइट? या करेक्ट. So I think every place has a very different hiring story. Yes. When you look for Indore or North India side, तो रिज्यूम देख के अगर आपने हायर कर लिया तो आपने मिस्टेक कर ली. बिकॉज रिज्यूम में कुछ लिखा ही नहीं होगा, इंग्लिश उतनी अच्छी होगी नहीं, काम में अच्छा होगा बट अगेन ही इज़ नॉट दैट गुड इन शोकेसिंग थिंग्स, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू डू देन ओनली यू गेट टू नो. We talked about how your product or the service that you offer right now revolves majorly around hiring remote developers, right? What has been the secret of success here in this case for you helping companies hire the right development teams? So I think when we were speaking about so हम सभी CTO से बात करते थे, सारे हायरिंग लीडर से बात करते थे, उनसे पहले पूछते थे कि यार आपने जो अच्छे लोगों को हायर किया है वो कैसे हायर किया, वो अच्छे क्यों हैं, why they are able to become productive in your company, and what all wrong hiring happened with you, how did you hire those people, what all mistakes happened, उनसे कंपनी को क्या कॉस्ट आया, क्या उससे कितना टाइम आपका बर्बाद हुआ. So I think this learning help us ourselves to correct it better, source it better, and understand where to fight what kind of people, what kind of value they are looking for, how the cultural change happening in the company, how we can support these individual rather than उनके अगेंस्ट में हो जाए कि नहीं यार उनको रिमोट चाहिए और आप बोलते नहीं मैं तो ऑफिस से बुलाऊंगा, राइट? सो इज देयर एनी सिनर्जी विच यू कैन वर्क अराउंड? आई थिंक दोज ऑल थिंग्स वी फाइंड आउट. तो हैविंग द राइट पीपल, एक्सपीरियंस पीपल, स्पीकिंग विद देम, अंडरस्टैंडिंग हाउ दे डिड इट राइट, उससे कुछ फ्रेमवर्क हम लोग ड्रॉ कर पाए. सो दिस व्हाट वी डिड टॉकिंग विद द कस्टमर. सेकेंड थिंग्स वी गेट टू नो ऑन बोर्डिंग द राइट पीपल ऑन अ बोर्ड. So we had very senior people on a leadership level who kind of solved this at large scale. तो उनका वो experience हमको help किया. And third, we build a right sort of product which kind of given us enough data, enough numbers. So we identified certain pattern कि अच्छा इस टेक्नोलॉजी में ये लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं या इस कंपनी में ये लोग सेलेक्ट होते हैं. सो इज दिस अ कल्चर, इज दिस सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, और दिस इज द टेक्नोलॉजी पुशिंग थिंग्स फॉरवर्ड. तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा काम किया. Three ways, I want to know 3 ways, let's say, that you could summarize how you are going to change hiring forever. मुझे लगता है हायरिंग का जो मार्केट है, इट्स आई डोंट लुक दिस एज अ हायरिंग, आई लुक दिस एज अ बिल्डिंग अ कंपनी, राइट? एंड इफ लोगों के पास में आइडिया कभी ख़त्म नहीं होंगे. अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको डिजिटल जाना ही जाना है
और सारा टैलेंट आपको आपके नियर बाय में मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, राइट? सो यू नीड डाइवर्स टैलेंट एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले क्या होता था, लोग ऑफिस में बुलाते इसलिए थे क्योंकि कंपलसरी था, राइट? आपको इंटरनेट इतना अच्छी स्पीड का नहीं मिलता था बाहर, तो लीज लाइन कनेक्शन केवल कंपनी अफोर्ड कर पाते थे, राइट? पहले और सिस्टम्स वगैरह जो उतने केपेबल नीडेड रहते थे वो कंपनीज के पास ही थे. नाउ मैकबुक एंड ऑल एवरीबडी कैन हैव इट, राइट? एंड थैंक्स टू जियो वाईफाई आपके गांव में मिलता है, तो आप नहर में बैठ के आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हो. वी हैव कपल ऑफ पीपल यार जो गांव में आराम से खेती वेती के पास में भी काम कर रहे हैं, एंड पीपल आर लविंग इट, राइट? बिकॉज उनसे पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, आप अच्छे काम कर रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है, आपके परफॉर्मेंस बढ़िया आ रहे हो, तो आपको क्यों देखना है? सो ये छोटे छोटी चीज़ें बहुत फोकस किया. एंड sorry, I missed the question. I wanted three very specific ways that you think you're going to revolutionize hiring. तो मुझे लगता है कि लोकेशन बेस्ड हायरिंग जो है वो अच्छा नहीं है. आई नो फ्यू टैलेंटेड लेडीज़ जो दे कुड नॉट गेट जॉब आफ्टर मैटरनिटी ब्रेक. उन्होंने फैमिली के लिए पहले पूरा लाइफ अच्छा कंसिस्टेंट टॉप परफॉर्म किया सो दैट सी कैन गेट द जॉब. उसके बाद में शादी हुआ, बेबी हुआ और मैटरनिटी ब्रेक लिया, एंड आफ्टर दैट सी वाज लुकिंग, ये सबका सेम ही स्टोरी है ऑलमोस्ट. दे वर लुकिंग जॉब जो कि जिसके बेबी को साथ में मैनेज कर पाएँ, बट उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जॉब मिलता नहीं था. टेक में तो वही मिल जाता है, फिर फिनांस में नहीं मिलता था, HR में नहीं मिलता था. And it's so sad, like why these talented people should leave the career because of managing the family, and they have to take that hard call. और उसके बाद में वो काफ़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाते हैं. And there are a couple of companies who are looking those talented people. Then why location only should be the barrier of any success? आज के टाइम पे जिस तरीके से कॉस्ट बढ़ रहा है, एक बंदे का फैमिली में कमाना सही नहीं है. आई थिंक एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट इन मेकिंग फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी और फैमिली, एंड उसके लिए कोई भी जिस लेवल पे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है करना चाहिए. एंड इफ़ वी एज अ कंपनी कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द राइट पीपल, क्योंकि हमने ऐसे कई लोगों को आइडेंटिफाई किया, कई लोगों को हमने वर्क दिया. मैंने अदिति को पूछा कि सी हैड अ गैप, आपने उनको क्यों दिखा? तो बोले पीपल वर लुकिंग फॉर गैप, आई वाज लुकिंग फॉर टैलेंट. एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन वी मेड हायरिंग दोज पीपल, बिकॉज वो कल्चरली काफ़ी अच्छे थे. दे वर वेरी पॉजिटिव इन हार्ट, दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, they were loyal to the company. So ऐसा दूसरी कंपनियां भी कर सकती हैं, और वो क्यों नहीं कर पा रही हैं? बिकॉज दे डोंट हैव अ डेटा. और ये लोग भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि 3-4 कंपनियों में उन्होंने ट्राई किया और फिर उनको दे डोंट हैव अ टाइम, और उनको लगा कि यार एनर्जी वेस्ट है, हम नहीं कर सकते हैं. तो इफ़ वी कैन मेक दिस डेटा बेस एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अदर्स कि देखो ये तो टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनको आप वर्क दे सकते हो, यू कैन रिलाई ऑन दैट, ये इनका पास का फीडबैक है, देन व्हाई नॉट यार. आई थिंक दैट्स अ huge contribution we can do, and it's a good impact in a society we can do. We should definitely do it. I love the way how you talk about the fact that it's not just hiring that you're going to change, it's actually company culture all around that. Correct. It's going to be. Mayank, I feel that you're a man of good stories, right? Any success story, any with hiring that you've had so far? So बहुत सारी hiring की success stories हैं. I think so far we have been हम लोग जहाँ से start होके यहाँ तक आ पाए, almost like before starting Engineer Babu, so almost I had 2 failed venture, and when I started Engineer Babu, तो ये मुकेश सुनील ये मेरे स्टूडेंट ही थे, and I was teaching somewhere, and because part time I was building product, part time I was teaching. One day देखा कोचिंग वाले लोग सारे चले गए हैं, ये 2 लोग सब लोग बाहर खड़े थे, तो बोलते क्या हुआ? तो हमने कहा ये तो फ्रॉड हो गया. मैंने कहा मैं भी यहाँ पढ़ाने आता हूँ, मेरे भी दाल रोटी से चलती है. तो बोलते हैं आप क्या करना है? तो मैंने किसी को फ़ोन लगाया, मैंने बोला आपका नाइट शिफ्ट चलता है यार, ये कुछ लोग हैं और मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ फ्री में, और इन लोगों को बोला कि देखो तुमको पढ़ाते हैं, दोनों जॉब ढूंढेंगे, तुम भी ढूंढना मैं भी ढूंढता हूँ, जिसकी पहले लग जाएगी वो छोड़ देगा. तो सभी का लग गया, 2 लोग बचे. तो बोलते हैं आप क्या करना है, हमारा तो नहीं लग रहा है. तो दे वर नॉट इन IT बैकग्राउंड. तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरा कंपनी स्टार्ट करने का मूड था.
2 फेल हुई तो चांसेस है तीसरी भी नहीं चलेगी, पर बोलते चल गया तो हमने कहा चल गया तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा, आप मुझे मत छोड़ोगे तो मैं भी नहीं आपको छोड़ूंगा, एंड दैट्स हाउ थिंग स्टार्टेड. सो इनिशियली इट वाज मोर ऑफ अ लुकिंग हु आर द राइट पीपल, ट्रस्टिंग देम, ट्रीटिंग देम वेल. फिर then I read couple of books which was Simon Sinek का Leaders Should Hire Last. Okay. And I think, Is that one of your favorite books also? I think I really hate that book. Really? Why? इससे so basically what happened, like when I read this book and I followed with heart कि यार लीडर शुड ईट लास्ट. तो कभी शुरुआत में व्हेन वी रनिंग द कंपनी तो कैश फ्लो के इश्यूज भी होते थे. आई वाज द लास्ट वन हु वाज टेकिंग सैलरी एंड सबको इतने अच्छे से ट्रीट करते थे कि एवरीबडी वाज नोइंग कि यार छोड़ के तो नहीं जाना है, मतलब कुछ भी होगा, प्रॉब्लम भी होते थे तो भी रहते थे. तो आई थिंक द बॉन्ड वाज वेरी 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 सॉलिड फैमिली बॉन्ड. एंड तो मैं भी किसी को उनकी गलतियाँ बता नहीं पाता था. उस बुक में लिखा है कि लीडर शुड बिल्ड अ सॉलिड बॉन्ड बट दे हैव नॉट टॉट कि अगर गलती कोई बना रहा है तो उसको हार्ड ट्रेन करना भी इम्पॉर्टेंट है. Right. तो आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हाट आई रियलाइज कि वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं. और देन वी हैव टू आस्क कि यार आप ग्रो नहीं कर रहे हो, कंपनी की ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, ईदर यू शुड लीव, यू हैव अ टाइम, 6 महीने 1 साल जितना तुमको लेना है वो ले लो, but that's the only way we can do good things for each other. And it was a very very hard decision for me, trust me, like I can imagine. किसी को, और and saying this to many people जो आपके लिए as a family, as a friend थे, because as a founder I really feel bad कि उनका करियर ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक लेवल के बाद में वो एज अ पर्सन नॉट इम्प्रूविंग, करियर वाइज नॉट इम्प्रूविंग. तो मुझे लगा यार हमारे साथ ग्रो नहीं हो रहा तो एटलीस्ट दूसरों के साथ ग्रो हो जाओ. एंड दे वर ऑल्सो नॉट लिविंग, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार आपको कैसे छोड़ के चले जाएं, राइट. Okay. तो ये बहुत Despite the fact कि fit नहीं है. यस. तो वो उनको लगा कि यार ठीक है, मुझे पता है कि मेरा पैकेज आपके साथ ग्रो नहीं हो रहा है, पर मुझे आपको छोड़ना भी नहीं है. तो ये बहुत गलत था वहाँ पे. एंड समटाइम्स यू नीड एज अ फाउंडर, इट लुक्स वेरी नाइस कि यार एंटरप्रेन्योर आपका लिंक्डइन में लिखा हुआ है, टाइटल है, सम विजय शेखर शर्मा इन्वेस्टेड इन ऑल, बट इट कम्स विद अ वेरी हार्ड फैक्ट. बहुत कई बार तो ऐसा लगता है कि यार कास्ट नहीं किया होता. अच्छा. Okay. So I'm pretty sure the advice that you would give to young entrepreneurs is going to be very different. What's your? So मुझे लगता है कि rather than you any new young entrepreneur or somebody who are starting a career, rather than they choosing a company, they should choose a leader. Okay. Because the kind of people you work is gonna define your lifetime. बहुत बार क्या होता है कि ये गलती जो है ना बच्चे की होती ही नहीं है. वो जिस टाइप के इन्वायरमेंट में काम करता है, जिस टाइप के लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो वैसी ज़िंदगी जी जाता है. जैसे आई नो समबडी, तो बेबी है किसी मेरे फ्रेंड का, एंड वो और हमारी एक बेटी है. तो राइट, मैंने उनको देखा कि वो काफ़ी साई रहता है, कहीं किसी से मिलता नहीं है और बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कराते हैं. तो इसमें बच्चे की मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक्स की या पेरेंट की, because they are not allowing him to go and meet. But for us, हाँ वो सब जगह घूमते रहती तो काफ़ी चिल है, मुझे मज़ा आता है. एंड सिमिलर हैपन विथ मी ऑल्सो. मैं इस चीज़ को क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई वॉज हैविंग, तो मेरे घर के सामने ही मेरा स्कूल था. कल्पना स्कूल पलेरा में, छोटी सी जगह थी. पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, मेरी कोई हॉबी भी नहीं थी, मैच वैच कुछ नहीं खेलता था. तो मैं बहुत दब्बू था, राइट, कि पढ़ाई करना ये करना बस उतना ही था. कुछ आता भी नहीं था यार, शॉपिंग करना नहीं आता था. शॉपिंग छोड़ो, मतलब ऐसा था कि सब्जी जाके, मतलब मार्केट जाके सब्जी लेना नहीं आता था. दोज ऑल थिंग्स. फिर जब आप इंजीनियरिंग में आ जाते हो तो आपको मार्केट फेस करना पड़ता है. यू स्टार्ट फेलिंग एंड नोबडी गिव अ शिट अबाउट कि आपको पुराना क्या था. आज अगर आप, तो उस टाइम पे बेसिकली अगर किसी ने हार्ड बताया होता कि ऐसा नहीं वैसा है, तो पेरेंट रियलाइज दिस मिस्टेक दे डिड. तो फिर छोटी बहन को उन्होंने इतना तेज़ किया कि वो मुंबई दिल्ली कहीं भी खुद ही रह लेती है सब कुछ. आज तक जितने भी ट्रैवल किया, सब कुछ किया, उसने खुद ही कर लिया सब कुछ. और ये मैं नहीं कर पाता था बीइंग अ सन. और उससे पूरी लाइफ इम्पैक्ट हुई, क्योंकि इंट्रोवर्ट था, कम लोगों से बात करता था. थैंक्स आई डिड एंटरप्रेन्योरशिप, तो एटलीस्ट आई रीड सम बुक
कि how to build and influence people, how to become a speaker. Still I am a earphone, not a speaker personality. Okay. But वो धीमे करके gradually आया. तो वैसे ही आप जिस लीडर के साथ में रहते हो ना, वैसे ही आपकी लाइफ हो जाती है और आपको एक अच्छा लीडर चूज़ करना चाहिए. अगर आपने लीडर ऐसा चूज़ कर लिया जो मनी माइंडेड है काफ़ी ज़्यादा, तो मे बी यू स्टार्ट थिंकिंग दैट्स द वे ऑफ रनिंग अ कंपनी. मे बी यू इफ़ यू फाइंड आउट अ लीडर हु इज़ वेरी गुड एट इंजीनियरिंग साइड, तो आपको लगता है कि वही एक तरीका है, बिकॉज यू बिकम अ एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू ना. तो चूजिंग द राइट लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. समटाइम यू रियलाइज़ कि यार ये मिस्टेक हो गए, तो लुक फॉर कि यार नहीं यार यहाँ तो नहीं कर रहा. Thank you so much, Mayank, for all of your time that you could, take up for us, during this podcast. बहुत मजा आया आपसे बात करने में. कुछ ऐसा मैसेज जो आप हमारे पॉडकास्ट के लिए छोड़ना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए छोड़ना चाहते हैं कि आगे हम हायरिंग के बारे में क्या बात करें, क्या वैल्यू ले जाएं लोगों तक? सो आई थिंक लाइक एवरीबडी सेड कि हायरिंग जो है वो स्लो होना चाहिए. सो यस, पीपल शुड नॉट हायर ऑन अ हरी, दे शुड लुक फॉर प्रॉपर फिटमेंट. Right. And there are a lot of books available. There are a lot of good leaders who did extremely good in hiring. So maybe before you start hiring yourself, why not speak with somebody who are already done? So friends who hired the right people, anybody in the same industry build a good company, maybe you can go and consult them, take advice. तो वहाँ से advice लेंगे तो काफ़ी आसान रहता है. फिर framework बनाइए. Then you engage with the right person who can help you in the hiring. Find out whatever comfort level, whether you are looking remote, hybrid, or on-site, whatever works for you. There's nothing right and wrong. And once you hire, then give them a proper time to get settled, adjust. Because day one में productivity नहीं आ पाता है किसी का भी. People need time to get settled. And once things are there, give them a clarity about the kind of work needed. That will work for most new on. Yes. जितना ज़्यादा clarity work का देंगे उतना hassle कम लगेगा. ऐसा नहीं कि रात को YouTube का कोई वीडियो देख लिया, excited होके फिर फ़ोन लगा दिया 12 बजे कि चल अगले दिन दुनिया हिला देते हैं, right? Because maybe you can see something they can't see, right? Have you done stuff like that? Yeah, obviously. रात को बैठे पार्टी चल रहा है, फ़ोन लगा दिया कि भाई ये तो कल कर देंगे. अब फिर देन यू एक्सपेक्ट कि यार 2 दिन में डिप्लॉय भी कर दे, राइट? द थिंग्स डोंट मूव लाइक दिस, राइट? आप तो वो मिस्टेक्स बहुत सारे होते हैं, बिकॉज जो उसमें आप ओवर इंजीनियरिंग कर देते हो, फिर वो आपको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो दोज ऑल थिंग्स आर देयर. बिल्डिंग कंपनी इज़ अ पेशेंस गेम. धीमे धीमे सही से फोकस्ड होके समझते हुए प्रॉपर क्लैरिटी के साथ में जब बिल्ड करेंगे, देन यू विल सी उतना हेसल की ज़रूरत ही नहीं होती. आप काफ़ी आराम से यू कैन बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. Thank you so much, Mayank, for that. That, guys, was Mayank Pratap from Super Sourcing, and that is what concludes our pilot episode for the Hiring Edge. I hope you found this conversation with Mayank incredibly enlightening and filled with valuable insights into remote work and productivity. But wait, that's not just it. In fact, we have an exciting lineup of future episodes for you, going into other aspects of the hiring landscape. In the upcoming weeks, so we'll deep dive into topics such as building a strong employer brand. We'll talk about diversity and inclusion in hiring. We'll talk about hiring tech specifically and tools in hiring that we, can use, that companies can use, that, entrepreneurs can use and get actual success. Undercover with hiring processes is going to be me, and of course there are going to be a lot of very interesting guests with us in the lineup. Yeah, so these are just a few examples of the exciting topics that we'll be covering in the upcoming episodes of The Hiring Edge. Please make sure to subscribe to our channel, to our podcast on your favorite platform, and join us every week as we unlock the secrets to building an exceptional workforce. This is all from me, Steven, for this time. I'll see you next time.